জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা। জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। ভাবনাটা কিরকম? আমরা ভাবি এনজিও করব, অর্গানাইজেশন করব, 2-4 মাস 10,000 টাকা 50,000 টাকা 1 লাখ টাকা চাঁদা নেব। আমি একটা গাড়ি কিনবো, একটা অ্যাপেল মোবাইল কিনবো, একটা ভালো মোবাইল কিনবো, আমি আগে ভালো করে চলবো, তারপরে যদি ওখান থেকে থেকে বাঁচে তাহলে আমরা গরিব মানুষদের সাহায্য করবো। অধিকাংশ এনজিও এখন তাই করছে। আশ্রম দেখায়, বৃদ্ধাশ্রম দেখায়, অনাথ আশ্রম দেখায়, মাদ্রাসা দেখায়, মসজিদ মন্দির গির্জা গুরুদুয়ার দেখায়, টাকা ইনকাম করে, আগে নিজের পকেট পুজো করে, তারপরে পরের জন্য পাবে। আমাদের অল্প অ্যাসোসিয়েশন সেটা হবে না। আমাদের অল্প অ্যাসোসিয়েশন হবে পরের জন্য করার মধ্য দিয়েই আমরা নিজের বেহেশতের জায়গা, স্বর্গের জায়গা আমরা দরজাটা খুলে ফেলবো। সেটা হচ্ছে পরের মঙ্গল করার মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রথম টার্গেট বেহেশতে যাওয়া। তো বেহেশতে যেতে গেলে আমাদের খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে, মানুষের পরোপকার করতে হবে, মানুষকে জাকাত দিতে হবে, প্রতিবেশীর সাহায্য করতে হবে, সাধু সন্ন্যাসী ইমাম মুয়াজ্জিন ওলামা মাওলানা যারা আছে তাদের দোয়া নিতে হবে। সেই ভাবনা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। যদি একমত হন সবাই দাঁড়িয়ে সমর্থন জানান। সবাই দাঁড়িয়ে সমর্থন জানান যারা একমত। কারো জীবনে এসে যাচ্ছে নাকি? তাহলে সবাই আমরা একমত। আমরা অল্প অ্যাসোসিয়েশন করতে যাচ্ছি। সবাইকে জোড়া হাততালি দিন। তাহলে আমরা আজকে অ্যাডহক কমিটি অ্যানাউন্স করছি। আপাতত যারা এই কমিটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাডহক কমিটি, আহ্বায়ক কমিটি, এটা এখন আহ্বায়ক কমিটি, এখন পূর্ণাঙ্গ কমিটি নয়। এর মধ্যে এটা বসে পরবর্তীতে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে ইমাম মুয়াজ্জিনদের নিয়ে, ধর্মগুরুদের নিয়ে, 2-1 জনকে নিয়ে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যেখানে যারা সংখ্যাগুরু তাদেরকে নিয়ে এটা আমাদেরকে একটা পুরো ফাইনাল কমিটি করতে হবে, যেটা রেজিস্ট্রেশন আমরা দেব। তো আমাদের যে অ্যাডহক কমিটি রয়েছে সেখানে আমাদের রয়েছেন যে মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, আমাদের ডাক্তার পরমানন্দ মহারাজ, রেভারেন্ড সঞ্জীব বিশ্বাস, পীরজাদা হাসানুজ্জামান, আয়ুব আলী, জিয়াউল হক, অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, বনশ্রী ভিক্ষু, শেখ আলিমুদ্দিন, শরণ সিং, মুস্তাফিজ হাসমি, সুকুমার দাস, এনাদের নিয়ে 13 জনের একটা অ্যাডহক কমিটি আজকে আমরা অ্যানাউন্স করছি। আপনাদের যদি কারো দ্বিমত থাকে বলতে পারেন। এই যারা কাজ করবে সংগঠনকে দাঁড় করাবার জন্য এই মুহূর্তে বিভিন্ন ছোট ছোট মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেবে, রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কাজ করবে, তাদের জন্য এই 13 জন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কেউ যদি কারো দ্বিমত থাকে, কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে প্রকাশ করতে পারেন নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে। এখানে যা বলবেন সব এখানে থাকবে। আমার বিরুদ্ধে যদি এই মুহূর্তে থেকে কোনো কথা বলেন সেটা এই হল থাকবে, এই হল করে পরে আমি আপনাকে আবার জড়িয়ে নেব। आज हम लोग सोनारपुर महामाया तला में जय हिंद ऑडिटोरियम में हम लोग का ऑल फेथ एसोसिएशन सर्वधर्म समन्वय मंच का आज गठन हुआ है। इसका साथ साथ आज 21 फरवरी है, हम लोग का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। इसका साथ साथ हमारा टालीगंज संपत्ति बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का 72 फाउंडेशन डे हम लोग इधर सेलिब्रेशन किया। हम लोग इधर हर डिस्ट्रिक्ट से इमाम मुअज्जिन से लेकर हर धर्मगुरु, महाराज, फादर, ये बिशप से लेकर हर धर्मगुरु हम लोग इधर मुलाकात किया, एक साथ आया। ये एक बात हम लोग का देना चाहता, ये हम लोग का पश्चिम बंगाल में जो रहता और हमारा भारतवासी जो है इंडियन सिटीजन है, हम लोग एक साथ में रहना चाहिए। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख ये भागाभागी नहीं है। हम लोग सब एक साथ में मिलकर रहना चाहिए। और ये हमारा बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए हमारा इंडियन
फ्रेटर्निटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इधर आज दीक्षा लिया, एक शपथ लिया, जहाँ हम लोग एक धर्म और अपर धर्म का मदद करने के लिए, एक हिंदू धर्म का आदमी इस्लाम धर्म का आदमी को मदद करने के लिए, इस्लाम धर्म का आदमी बुद्धिस्ट धर्म का मदद करने के लिए हम लोग इधर आज शपथ लिया ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन का तरफ, ऑल इंडिया ऑल फेथ एसोसिएशन का तरफ से। तो कुछ इसके बारे में बताइए थोड़ा, मतलब जो आज जो बना है आपका संगठन, इसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये संगठन तो बहुत है, तो हम लोग और एक नया संगठन आज से आता था, हम लोग इधर गठन किया, वो है ऑल फेथ एसोसिएशन सर्वधर्म समन्वय मंच। इसका एक ही मकसद है, हम लोग का सबका मिलकर रहना चाहिए, हर धर्म को मिलकर रहना चाहिए, और मिलकर हम लोग का कोई प्रॉब्लम है तो कोई किसी का माइनॉरिटी का प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई निधि का, हम लोग का मदद करना चाहिए। ये लोग हम लोग जो इमाम मुअज्जिन पादर धर्मगुरु बौद्ध सन्यासी है, सबको मिलकर हम लोग सब एक अपर को दूसरा को मदद करूंगा, ये शपथ आज हमने लिया। तो आने वाला आगामी के दिन में भी आपको और भी कहीं मतलब ये कॉन्फ्रेंस होगा? ये बिल्कुल हम लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन आज रेडी हुआ, ये कलकत्ता में हम लोग का आज नया हुआ, तो हम लोग तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मदद करने के लिए जाऊंगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक धर्म का बानी, एक धर्म का बात दूसरा धर्म को यह समझाने का कोशिश करूंगा। यह आपस में हम लोग का फ्रेटर्निटी बढ़ेगा, ब्रदरहुड बढ़ेगा, इसलिए हमको शोभातीत बढ़ेगा। बौद्ध धर्म का बारे में मुस्लिम धर्म आदमी का जान पहचान होगा, मुस्लिम धर्म का बारे में हिंदू धर्म को जान पहचान होगा। ये हम लोग एक अपर को दूसरा को मदद करने के लिए, एक ही अपर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मदद करूंगा, एक साथ में रहूंगा, और एक साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये हम लोग का जो ब्रदरहुड ये हम लोग प्रचार करूंगा। थैंक यू सो मच। सी बेस अगर मैं ये कहूँ, मैं प्रोटेस्ट तो ये नहीं कहूँगा कि मैं हर प्रोटेस्ट में दिखाई देता हूँ, पर हाँ मैं हर उस जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मेरे ज़रिए अगर किसी की कुछ हेल्प हो सके, या कोई एक अच्छी सोच डेवलप्ड हो सके जो 10 और लोगों को मोटिवेट करे कि वो 10 और या 1000 लोगों की मदद कर सके। तो मैं बेसिकली उस सोच को डेवलप्ड या उस सोच को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ जिसमें एक दूसरे के दर्द को समझे, एक दूसरे के लोग काम आ सके, या एक दूसरे के लिए अच्छी सोच को आगे बढ़ा सके। जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है, जातिवाद को लेकर कट्टरता और सी अगर आप अपने नज़रिए से देखिएगा तो आप बांटने की बात अगर कहिएगा कि हिंदू मुस्लिम की तरफ लोग बढ़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बढ़ते हैं, तो मेरा नज़रिया थोड़ा हटके है, मैं जोड़ने की बात करता हूँ। तो मैं दर्द के ज़रिए जोड़ने की बात करता हूँ। दर्द किसी को भी हो, हिंदू को हो, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबका दर्द सेम होता है। तो जिस दिन हम ये चीज़ समझ लेंगे कि अगर हम उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो उसको भी वही दर्द होगा जो मुझे होता है, तो आई थिंक जिस दिन ये इंसानियत हमारे अंदर डेवलप्ड हो जाएगी तो फिर ये मसला ही खत्म हो जाएगा। जो लोग ये बांटने का और कट्टरता और नफरत फैलाने की जो करते हैं, ये प्रयास करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना है? देखिए आई थिंक मैं इसको फिर मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। अगर हम उनको उतना कवरेज नहीं दे कि जो लोग बांटने की बात करते हैं या जो दंगे फसाद की बात करते हैं, हमारे साथ मीडिया में भी ये हॉट न्यूज़ हो जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाता है, आप उन लोगों को दिखाइए जो चंद लोग जो जोड़ने की बात करते हैं। आप समाज में चारों तरफ कहीं ना कहीं शायद कोई हो सकता है, कोई एक छोटा भिखारी हो, या कोई छोटा बिजनेसमैन हो, या कोई छोटा सोशल वर्कर हो जो जोड़ने की बात करता है। आप उनको दिखाइए, आप उनको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाइए, इंशाल्लाह सोच बदलेगी तो देश की तकदीर भी बदलेगी। सी आपके नज़रिए से ये कॉन्फ्रेंस है, मेरे नज़रिए से ये एक सोच की पैदाइश है जो कल होके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और सोशल रिफॉर्म लाएगा, सोसाइटी में इक्वालिटी लाएगी। और जिस दिन सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी, ऑटोमेटिकली एक सिंपल सी बात है, 10 तरह की बुराइयों से सोसाइटी बच जाएगी। आपको भी लेकर मामला चल रहा है, उसको भी एक वोट बैंक की तरह यूज करने की चाह रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। देखिए अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो हिजाब एक मुद्दा है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बनाने का एक जरिया है। बात हिजाब की नहीं थी, बात वहाँ गलत और सही की थी। देखिए जब वो लड़की एक इंस्टीट्यूट में अपनी फॉर्म भरने जा रही थी, वो अकेले थी, उसको अपोज वहाँ पे बहुत सारे 10-20 लड़के कर रहे थे। ये तो किसी रिलीजन में नहीं है कि किसी एक कमज़ोर लड़की को 10 लड़के मिलके अब्यूज़ करे या उसको प्रोटेस्ट करे। बात सिंपल सी थी कि जो हुआ वो गलत था, वो हर रिलीजन के हिसाब से गलत था, हिंदू के हिसाब से भी गलत था, मुस्लिम के हिसाब से भी गलत था, इंसानियत के हिसाब से गलत था। पहले इंसान से इंसानियत बना, बाद में भी कोई रिलीजन बनी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक सर्वधर्म सम्मेलन का एक तो ऐलान किया हुआ है आज, इसके सब मिल के हम लोग एक्चुअली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आया हूँ, फिर भी हम लोग इसमें सम्मत है
कि ये चीज़ लागू हो और हम लोग सब मिल के काम करेंगे। और सबको रिक्वेस्ट है कि आके हम लोग का साथ दे और इस जो हम लोग का प्रयास है इसको आगे बढ़ाएं। क्या मतलब आज यहीं पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्या आने वाली आगामी के दिन में और भी कहीं होगा ये वाला कॉन्फ्रेंस? हाँ, ये तो कंटिन्यू होगा। ये कॉन्फ्रेंस तो आज फर्स्ट टाइम नहीं है, आज थर्ड टाइम है। हाँ, लेकिन ये कंटिन्यू होते रहेगा और बहुत बड़ा होगा। हम लोग का आशा है कि ये चीज़ सबके लिए अच्छा ही होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब माने कोई जाति अलग नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, कोई आदमी भी अलग नहीं है, सब एक है। हम लोग सब मिल के एक साथ काम करें, तब सबका साथ सबका माने जो प्रयास होगा सो एक साथ करेंगे और एक ही साथ आगे बढ़ाएंगे।